তার জাস্টিস মানে আমাদের জাস্টিস। in Tripura since a long time, but some of us only raises our voice. Everyone to come forward and speak. आप लोग ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जिससे ऐसे लोग, ऐसे अमानसिक काम करने से भी थर थर कांप जाए? Hello everyone, here I'm raising my concern and I'm raising my voice against the rape which happened earlier this month on 21st July in Teliamora, Tripura. A minor young girl, 17 years old girl, was gang raped by a group of men. It was so brutal and harsh, and if we now as a citizen of the state, if we don't raise our voice and if we don't raise our concern and if we don't condemn the act, it would be very unfair and very shameful for the entire state and entire citizen. So I request everyone to come forward and speak and raise your and demanding justice for this little girl, and also demand concern from the higher authority to do further investigation and proper judgment on this matter, and also demand stringent action against the rapist and the main culprit behind this pre-planned gang rape. Hi everyone, I have something to say. It's really heartbreaking. A 17-year-old minor girl got brutally gang raped in a broad daylight by a group of men. It happened in Telamora, Tripura, which is a very shameful act and an unfortunate one for the girl, her family, and for our society. Such incidents, such issues are completely disgusting and unforgiving. I expect the authorities in charge to take strict actions legally and punish the culprits severely under IPC section rule 376. This rape culture thing is taking place in Tripura since a long time, but some of us only raises our voice and others just remain quiet. It's a notorious crime. I rely on Tripura government or the authorities to take a complete action on this matter to give a girl the justice she deserves to, and that's all I want to say. আমি খুবই দুঃখিত, কারণ গত 17 জুলাই বুধবারে তেল্লামুড়ায় একজন 17 বছরের নাবালিকা মেয়ের উপর ধর্ষণ হয়। তো এই ধর্ষণের প্রতিবাদে আমি তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ জানাই, ধিক্কার জানাই। আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছে এটা খুবই একটা নিন্দাজনক, লজ্জাজনক, ধিক্কারজনক এবং দুঃখজনক একটা ঘটনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এমন ঘটনা এত প্রথমবার নয়, দীর্ঘক্ষণ যাবৎ ধরে চলে আসছে। তার জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমার আবেদন এবং অনুরোধ থাকবে যে এই ঘটনায় জড়িত অপরাধীদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তার করে ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আইপিসি সেকশন 375 রেপ কেস এবং আইপিসি সেকশন 376 এর মাধ্যমে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন ঘটনা আর যাতে কোনো মেয়ে মা বোনদের সাথে আর এমন নিন্দাজনক ঘটনা আর এমন অত্যাচার আর যাতে না হয়, এই ঘটনার উপর বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমার আবেদন এবং অনুরোধ রাখছি। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরা সরকার এই ঘটনার উপর জোর দেবে এবং সেই 17 বছরের নাবালিকা মেয়েকে জাস্টিস দেবে। তার জাস্টিস মানে আমাদের জাস্টিস। नमस्कार। बड़े खेद के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि 21 जुलाई को हमारे त्रिपुरा पे एक 17 इयर्स के माइनर लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से
5 लड़कों ने मिलकर उसका बेरहमी से बलात्कार किया। ये सिर्फ पहला केस नहीं है हमारे त्रिपुरा पे, ऐसा बहुत सी रेप केसेस है हमारे त्रिपुरा पे जो कि अब तक शायद पेंडिंग है। हमने नहीं सुना किसी को जस्टिस मिलते हुए। और जो ये रेप केसेस है ना, ये हमारे इंडिया का, ये सिर्फ त्रिपुरा का प्रॉब्लम नहीं है, एंटायर नेशन का प्रॉब्लम है, हमारा इंडिया का प्रॉब्लम है। ये कल्चर बन गया है हमारा रेप। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब आप न्यूज़पेपर खोलो और आपको रेप का कोई खबर न मिलता है। हम इसे कॉमन न्यूज़ समझते हैं आजकल, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं, हम माँ के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो हमारे माँ की बेटियां हैं, हमारी माँ जैसे हैं, उन लोग के साथ बलात्कार होता रहता है आए दिन, लेकिन हम उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते। हम सवाल किसको करें, मतलब हम इसके जिम्मेदार समझे किसको, समाज को या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उन्हें, या फिर जो अमानसिक रोग, मतलब अमानसिक लोग हैं जो कि ये सब कांड करते हैं, ये सब क्राइम करते हैं, उन्हें समझे। मैं एंटी गवर्नमेंट वाली बात नहीं कर रही हूँ। मुझे भी गर्व है कि मैं इस मिट्टी की बेटी हूँ, इंडिया के नागरिक हूँ, और हमारी इस गर्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों के पास है। आप लोग ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जिससे ऐसे लोग, ऐसे अमानसिक लोग, ऐसे अमानसिक काम करने से भी थर थर कांप जाए, ऐसी बात सोचने से भी थर थर कांप जाए। लेकिन हम सिर्फ वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कब ये इंसिडेंट होगा। और जब ये सब इंसिडेंट जब पब्लिक मुद्दा बन जाता है, जब बहुत से लोग आवाज़ उठाने लग जाते हैं, सिर्फ तभी हम इसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। हमारे बस यही रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि आप लोग ऐसा कानून बनाइए जिससे हम लड़कियां, हम औरतें सुरक्षित स्कूल कॉलेज जा सकें, जिससे हम सुरक्षित रह सकें, जिससे हमारे समाज के लिए भी एक मैसेज है। क्योंकि इन सब के पीछे जो रेप केसेस हमारे इंडिया पे हो रहा है ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। क्योंकि हम जब भी रेप न्यूज़ सुनते हैं ना, तब हम क्राइम से ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट लड़की की टाइमिंग को देते हैं। वो कौन से टाइम पे घर से निकली थी, कौन से टाइम पे घर वो लौट रही थी, किसके साथ थी, कहाँ पर थी, हम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं क्राइम से ज़्यादा। जो क्राइम करता है उससे ज़्यादा हम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ऐसे फालतू के मुद्दे खड़े करके हम लोग एक्सक्यूजेस देकर इन सब को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे ही इन सब कल्प्रिट्सों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आज सिर्फ 17 साल की लड़की नहीं, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची, उन लोग के साथ भी रेप होता है। अब तब भी आप पूछोगे कि मतलब किसके साथ अफेयर थी, उसका कौन से टाइम पे निकली थी, तब भी पूछोगे आप सब। यह हम सब की सोच के वजह से इन सब लोगों को, इन सब अमानसिक लोगों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अपना सोच बदलो और अपना आवाज़ को उठाओ लड़कियों की सुरक्षा के लिए। हमारे समाज के लिए भी एक मैसेज है। क्योंकि इन सब के पीछे जो रेप केसेस हमारे इंडिया पे हो रहा है ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। क्योंकि हम जब भी रेप न्यूज़ सुनते हैं ना, तब हम क्राइम से ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट लड़की की टाइमिंग को देते हैं। वो कौन से टाइम पे घर से निकली थी, कौन से टाइम पे घर वो लौट रही थी, किसके साथ थी, कहाँ पर थी, हम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं क्राइम से ज़्यादा। जो क्राइम करता है उससे ज़्यादा हम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ऐसे फालतू के मुद्दे खड़े करके हम लोग एक्सक्यूजेस देकर इन सब को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे ही इन सब कल्प्रिट्सों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आज सिर्फ 17 साल की लड़की नहीं, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची, उन लोग के साथ भी रेप होता है। अब तब भी आप पूछोगे कि मतलब किसके साथ अफेयर थी, उसका कौन से टाइम पे निकली थी, तब भी पूछोगे आप सब। यह हम सब की सोच के वजह से इन सब लोगों को, इन सब अमानसिक लोगों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अपना सोच बदलो और अपना आवाज़ को उठाओ
लड़कियों की सुरक्षा के लिए।